Hi dear students, welcome to today's class. In today's class we will do questions of exercise 5.1 of your NCERT book. Let us do question number 18. In this question it is given that this is a function fx is equal to lambda times of x square minus 2x if x is less than equal to 0, and the function is defined in this way 4x plus 1 if x is greater than 0. Now you are to find out the value of lambda for which this given function is continuous at x is equal to 0. And what about the continuity at x is equal to 1? This is also to find out. Now it means there are two parts in this question. First of all, you need to find out the value of lambda for which this function is continuous at x is equal to 0. And in the second part, you will check the continuity at x is equal to 1. So let us start with the first part. First part को करने से पहले हम let us have the view of this function on the number line. So this critical point is 0. To the left of 0, this function is lambda times x square minus 2x at equal to 0 is also 0 पर भी यही है function. So lambda times x square minus 2x, and to the greater side of this x, when x greater side of this 0, 4x plus 1 means the right side of this 0, the function is defined in this way. So first of all, I will do the first part in which we are to find the value of lambda when it is given that the function is continuous at x is equal to 0. So when f0 0 square minus 2 into 0, so it is 0, lambda into 0 is equal to 0. Now left hand limit is limit x tends to, we are to go to left side of 0, function at the left side of 0, it means limit x tends to 0. What is the function to the left side of 0? There you leave the space of x and write down the function. Leave the space of x, write down all the function, and wherever there was x, put here 0 minus h. Why I have written this 0 minus h? 0 minus h means you are going little bit left to 0. Little bit left to 0. थोड़ा सा हम इसके इधर जा रहे हैं. कितना जा रहे हैं? h. h is approximately equal to 0. Okay. So up, because upon it there is 1, you put the value of h directly because it is not in determinant form. So you can see it is directly lambda into 0 is equal to 0. So left hand limit is also 0. Now come to right hand limit. Right hand limit x tends to right side of 0. A function क्या है? Limit when x is approaching to the right side of 0, then what is the function? Write down limit h tends to 0. This is not x, this is h is tending to 0. मतलब यहाँ पर हमने प्लस h कर दिया, इधर जाएंगे तो माइनस h कर दिया. 0 माइनस h, इधर 0 प्लस h. और इधर क्या है फंक्शन आपका? राइट डाउन द फुल फंक्शन बट लीव दिस प्लेस, लीव दिस स्पेस फॉर x वैकेंट. अब x की जगह क्या लिखेंगे? 0 प्लस h. 0 plus h, because here 1 is there in the denominator. It clearly shows that it is not in determinant form. We can put the value of this h directly here, and what is that? 0. So this is 0 into 4 is 0 plus 1. This is equal to 1. Now it is already given to you. ये आपको दिया हुआ है कि this function is continuous at 0. According to question, function is continuous at x is equal to 0. What does it mean? It means left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 0. Left hand limit is 0. Left hand limit is 0. Right hand limit is 1, and this is also 0. You can see here
the function is not continuous for any value of lambda, क्योंकि it is independent of lambda here. It is coming out independent of lambda. So we have seen this is not equal, this is not equal. This implies function is not continuous for any value of lambda. क्यों भाई? Because it is independent of lambda. Okay. Now come to the second part. यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है. सेकेंड पार्ट में 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना है. तो सबसे पहले f of 1. आपको क्रिटिकल पॉइंट तो 1 दिए ही नहीं है. 1 तो आपका कहीं यहाँ पर होगा, है ना? तो f of 1 it means greater than 0. So this function will be considered. Okay. So this is 4 into 1 plus 1, that is 5. Now students, you can see here, when we are talking about this x is equal to 1, it means we are always on the right side of 0. We are here, and when I am taking left side of 0, sorry, left side of this, for left hand limit, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लूँ या इधर माइनस एच करके मैं लेफ्ट हैंड लिमिट जाऊँ या प्लस एच करके मैं राइट हैंड लिमिट जाऊँ, आई विल रिमेन हियर इन दिस इंटरवल ओनली, जो कि 0 to infinity है और जिसमें फंक्शन है आपका 4x plus 1. अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि when we are going to the left side of this one, it means we can go here also. यहाँ भी तो हो सकता है. No, because whenever we are talking about left hand limit or right hand limit, it means little bit to the left. बहुत थोड़ा सा लेफ्ट में जाना होता है, बिल्कुल माइनरली जाना होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं. इसीलिए यहाँ पर ये जो लिमिट दिया जाता है ना कि यू आर टू गो लिटिल बिट टू द लेफ्ट, थोड़ा सा जाओ, h प्लस या माइनस करना है. और जो h है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज वी आर राइटिंग हियर दैट h इज टेंडिंग टू 0. यानी h बहुत छोटी सी एक वैल्यू है जो कि हमें यहाँ जो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है उसमें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके उसके लेफ्ट या राइट में जाना है. तो अगर आप माइनस एच करते हैं जो कि बहुत छोटी सी वैल्यू है, 1 में से माइनस एच करते हैं या 1 में से प्लस एच करते हैं, तो आप इसी इंटरवल में रहेंगे जहां पर आपका फंक्शन है 4x plus 1. यानी दोनों साइड 4x plus 1 है. तो हम डायरेक्टली ही यहाँ पर लिख सकते हैं कि लिमिट जो हम निकाल रहे हैं x tends to 1 fx, वो डायरेक्ट निकल जाएगी आपकी. हम किस फंक्शन पर देखेंगे? ये लिमिट x tends to 1 4x plus 1 पर. यानी अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो आप ऐसे करके देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तब भी. या फिर आप डायरेक्टली लिमिट जो आपने 11th क्लास में किया था, डायरेक्टली लिमिट पुट करके देखना चाहते हो. क्यों? क्योंकि दोनों साइड सेम फंक्शन है, इस वजह से अपॉन 1 है. ठीक है, अपॉन यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म तो आने से रही, क्योंकि ऊपर 0 आ सकता है आपका. तो 0.1 भी हुआ तो 0.1 इज 0, अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं आएगी, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी इसमें. तो पुट द वैल्यू ऑफ द लिमिट 4 into 1 plus 1, that is 5. इसका मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि हमने ये लिमिट x tends to 1 fx निकाला, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट निकाला, एंड दैट इज इक्वल टू योर 5 और f1 इज ऑल्सो 5. सो इट मीन्स आपका ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. अच्छा, अभी अगर आपको इसी तरीके से करना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल के करना है, तो मैं उससे भी आपको दिखा देती हूँ. तो आप करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट ऑफ दिस इज 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. 1 के लेफ्ट में क्या फंक्शन? 1 के लेफ्ट में अभी मैंने समझाया आपको, फंक्शन वही रहेगा आपका 4 times x plus 1. तो x की जगह हमने छोड़ी, and what we will write here? We will write here 1 minus h because we are going little bit left to the 1. अब यहाँ पर h की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 ही आ रहा है. अब राइट हैंड लिमिट कर लीजिए आप. राइट हैंड लिमिट में लिमिट अब आपने 1 के राइट जाना है, 1 plus fx is equal to limit h tends to 0. फंक्शन तो वही रहेगा 1 के राइट में भी. हाँ, अब लेकिन x की जगह हो जाएगा 1 plus h, तो 1 plus h. अब आप h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तब भी 5 आया. तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल
इक्वल टू f1, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। और ये भी आप देख लीजिए कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा है, इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि लैम्डा की क्या वैल्यू है वहां पर, हमारा फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस ही आ रहा है। ओके, यस स्टूडेंट्स, in this question number 19 it is written that show that the function defined by gx is equal to x minus greatest integer of x is discontinuous at all the integral points where delta this is representing the greatest integer less than or equal to x। तो आपको ये दिखाना है कि ये सभी इंटीग्रल वैल्यूज पर डिसकंटिन्यूअस है। तो सभी पर लेना, तो क्या करते हैं हम, एक कोई भी सी आर्बिट्ररी इंटीग्रल वैल्यू ले लेते हैं। तो लेट सी बिलोंग्स टू सी बी एन इंटीग्रल, सी बी एन इंटीजर फ्रॉम सी बी एन इंटीजर, ओके, एनी आर्बिट्ररी, सी बी एनी आर्बिट्ररी इंटीजर। सो जी ऑफ सी क्या होगा, c माइनस सी। अब इंटीजर का मतलब 1, -1, 0, 2, 3, -2, -3, ठीक है। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन कैसे होता है, क्या होता है, इफ यू रिकॉल दैट, देखो अगर मैं 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगी तो 1 आएगा, 1.2 का लूंगी तो 1 आएगा। मीन्स नंबर लाइन पर आपने क्या देखना है, जो भी है ये आपका 1.2 है, सपोज 1.2, ये 1.2 है, तो 1.2 के लेफ्ट में देयर आर मेनी इंटीजर्स। इनमें से सबसे बड़ा कौन है, इसके जस्ट लेफ्ट में जो होगा दैट इज योर आंसर। 1.3 के लेफ्ट में, बिल्कुल लेफ्ट में जो इंटीजर है वो। अच्छा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर -1.1, ये -1.2 पर बोला मैंने, -1.2, तो -1.2 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, -2, ठीक है। जैसे -1.2 के लेफ्ट में क्या होगा, -2। अच्छा, अगर मैं 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँ तो 1 ही आएगा, 2 का 2 ही आएगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही आएगा। ऐसे c एक इंटीजर है, c एक इंटीजर है, तो इस c का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, c ही होगा ना। 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, हर इंटीजर पर द आंसर इज द इंटीजर इटसेल्फ। ओके, अगर डेसिमल में है तो उसके लेफ्ट वाला, जस्ट लेफ्ट वाला, बिल्कुल द इंटीजर विच इज जस्ट लेफ्ट टू इट, वी आर टू राइट दैट। तो आप यहाँ पर अगर हम बात करें तो c माइनस, ये एक इंटीजर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर c ही होगा, सो दैट इज इक्वल टू 0। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू c का लेफ्ट में फंक्शन के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन टू द लेफ्ट ऑफ c, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। आप इस c, आपने x की जगह क्या रखना है, c माइनस h, c पहले तो आप c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस h। देखो c माइनस h, जैसे अगर मैंने लिया 2 में से h माइनस किया, h क्या हो सकता है, सपोज करो h है हमारा 0.001, तो ये क्या हो गया 1.999 है ना, 1.999। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया 2, तो आपने जब 2 माइनस h किया, तो उसका ग्रेटेस्ट, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 होगा। 2 माइनस h की जगह देखो, 2 माइनस h, तो 2 माइनस h मैंने ले लिया 0.001, सपोज आई हैव टेकन, तो ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.999। एज आई एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ कि अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि इसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, दैट इज 1। तो 2 माइनस h क्या आया, ये जो भी आपका इंटीजर था, जो भी जिसमें से आप कुछ माइनस करें, उससे 1 लेसर इट इज कमिंग आउट। सो अगर हम यहाँ पर c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं तो एक कम आएगा, माइनस कर रहे हैं तो एक, इट विल बी c से क्या होगा, इट विल बी 1 लेस। तो चलो ये तो एज इट इज आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h माइनस, और ये इससे एक कम आएगा c माइनस 1। Now open it, so this will be limit h tends to 0, this is c, this is
see, let me write it in this way so that you can understand. This is c minus h minus c plus 1. You subtract it. This is minus h plus 1. Put the value of h, that is 0. तो आंसर आ गया 1. आपको यहीं से दिख रहा है कि आपका जो एफ सी है वो 0 आ रहा है और एफ लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 1 आ रही है. राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं. देखो एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन कि दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन योर एग्जाम फॉर means the weightage of the question in your exam. If it comes for 4 marks, तो आपको यहाँ तक लिखने के फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपको राइट हैंड लिमिट, वैसे तो हमें पता चल गया कि g ऑफ c इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको राइट हैंड लिमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट फुल मार्क्स. सो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx. तो आपने अब लिमिट h टेंड्स टू 0, इस x की जगह c प्लस h लिखना है. c प्लस h माइनस c प्लस h. ओके, नाउ c प्लस h तो इट विल रिमेन एज इट इज. ओके, c प्लस h. लेकिन अगर हमने जैसे 2 है, 2 में प्लस h किया, h सपोज करो वही है 0.001. c प्लस 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 2h को मैंने वैल्यू दे दी 0.001. तो 2.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया? 2. टू द लेफ्ट ऑफ 2.001 2 इज द इंटीजर. तो इसका मतलब यही आंसर है आपका. तो यहाँ पर ये c ही आंसर होगा. दिस इज माइनस c. तो दिस इज कैंसिल्ड. पुट द वैल्यू ऑफ h, दैट इज 0. तो अब हमने क्या देखा यहाँ पर, g ऑफ c इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये कितना है 0 है, ये कितना है 0 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 1 है, और राइट हैंड लिमिट कितना है 0 है. These are not equal. That's why function is not continuous at c. Therefore, function is not continuous at any integral value. Hi students. Now 20th question in which you are to given to check the continuity of the function at this given point x is equal to pi and the function is this. देखो बेटा, now it depends upon the weightage of this question in your exams. If it comes for 2 marks, अगर 2 marks के लिए, then what to do? You are to just write कि fx is equal to, आप इसको rearrange करते, fx is equal to x square plus 5 माइनस साइन एक्स. ठीक है, उसके बाद आप लिखते कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसके बाद आप पहले जी एक्स, इसको नाम दे देते जी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एंड दिस इज एच एक्स, दैट इज साइन एक्स, साइन एक्स. फिर आप लिखते एफ एक्स क्या है, जी एक्स माइनस एच एक्स. फिर आप बोलते कि जी एक्स, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स. ठीक है, फिर आप बोलते कि दिस एच एक्स इज साइन एक्स फंक्शन एंड वी नो दैट साइन एक्स फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स. देयरफॉर बाय द अलजेब्रा ऑफ द कॉन्टिन्यूटी, द subtraction of two continuous function is also continuous function. When it is continuous for all real numbers, therefore it is continuous for pi also, because pi is also, it will be pi continuous at that particular point also. Okay, but suppose if this question comes for your 4 marks, then how to do? In that case, पहले आप f of pi निकालिए. Pi square minus sin pi plus 5. We know sin pi is 0, so this is pi square minus 0 plus 5, so answer will be pi square plus 5. Okay, now left hand limit. Left hand limit is limit x tends to left of pi, left of pi, pi minus I have written, so limit h tends to 0. पाई के लेफ्ट में फंक्शन क्या होगा? बिकॉज देखो हमें तो ये फंक्शन कोई ऐसा दिया ही नहीं कि इट इज बिहेविंग इन द डिफरेंट मैनर टू द लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ पाई एंड टू द राइट साइड ऑफ पाई, ऐसा कुछ दिया ही नहीं. हमें तो ये दिया कि ये फंक्शन है, इट मीन्स
everywhere it is being defined in the same manner. So that's why we'll write the same function, but wherever it is x, हम उसकी जगह क्या लिखेंगे? उसकी जगह हम लिखेंगे पाई माइनस एच, पाई माइनस एच, पाई माइनस एच. ओके, सो इट वुड बिकम पाई माइनस एच का स्क्वायर. ओके, लेट इट बी एज इट इज. साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है बिकॉज इट इज पाई. पाई का मतलब फंक्शन विल रिमेन एज इट इज. पाई माइनस एच, इट मीन्स यू आर कमिंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. इन द सेकेंड क्वाड्रेंट यू नो साइन का जो साइन होता है, साइन फंक्शन का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव ही रहेगा, साइन एच प्लस 5. अब आप h की जो लिमिट दी हुई है दैट इज 0, तो वो पुट कीजिए. पाई माइनस 0 का स्क्वायर, सो पाई स्क्वायर. साइन 0 इज 0, तो ये आपके पास आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5. चलो ये दोनों तो सेम हो गए. अब राइट हैंड लिमिट में आ जाइए, आप राइट हैंड लिमिट कीजिए. राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू, अब आपने पाई के राइट में देखना है फंक्शन, सो इट वुड बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0. अब आपका फंक्शन तो वही है, लेकिन बस जहाँ x है उसकी स्पेस छोड़ के आप वहाँ पर क्या लिखेंगे? वहाँ पर हम लिखेंगे पाई प्लस एच, पाई प्लस एच. ओके, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस एच होल स्क्वायर माइनस. अब आप देखिए पाई है तो फंक्शन तो वही रहेगा साइन थीटा, लेकिन आप प्लस एच की वजह से पाई प्लस एच का मतलब यू आर कमिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट. इन द थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, सो दिस वुड बिकम लाइक दिस. नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ एच दैट इज 0, तो पाई स्क्वायर क्योंकि एच तो 0 हो गया, माइनस साइन 0, एंड वी नो दैट साइन 0 इज 0. दिस इज इक्वल टू 0 ही होता है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 दैट इज अगेन पाई स्क्वायर प्लस 5. तो हमने ये देखा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू. हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्चुअली देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन and we are to check the means we are to discuss the continuity of these 3 parts given in this question number 21. First part is sin x plus cos x, second part is sin x minus cos x, and the third part is sin x into cos x. तो अगर if this question comes for 2 marks, फिर वैसे ही करेंगे जैसे मैंने पहले बताया था कि gx इज इक्वल टू साइन एक्स ले लीजिए, hx इज इक्वल टू कॉस एक्स ले लीजिए, और आपको लिखना है दिस इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. क्योंकि हमें पता है साइन x, आपको ग्राफ भी याद ग्राफ से मैंने बताया था कि साइन x जो है हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर ऑल रियल नंबर्स. ऐसे कॉस x है, इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, एंड fx जो है दैट इज द सम ऑफ दीज 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, है ना. तो बाय अलजेब्रा ऑफ continuity we know sum of 2 continuous functions is also continuous, therefore fx is also continuous. But it is that you are to do this only when it comes for 2 marks. अगर आपका 4 marks के लिए आता है तब ये नहीं चलेगा इतना. 4 मार्क्स में आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे इतना लिखने पर. फिर उसमें क्या करना है, फिर तो आपको वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सारा करके दिखाना पड़ेगा. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हेन वी आर नॉट गिवन एनी पर्टिकुलर पॉइंट, देन हाउ कैन वी डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ दिस फंक्शन. तो इट मीन्स वी आर टू चेक इट फॉर ऑल द रियल नंबर्स. अब सभी रियल नंबर्स के लिए हाउ कैन वी चेक? इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं अभी ऑन नंबर लाइन. तो एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, इफ you are to check the continuity of the function for all the real numbers, then we consider any arbitrary point. क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं फंक्शन के भी ये पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट में ये अलग तरीके से डिफाइंड है. मान लो 3 है तो 3 के लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी तक ये अलग है, और यहाँ तक ये अलग है तरीके से, तो 2 इंटरवल बन गए. यहाँ पर अलग चेक करो, यहाँ अलग चेक करो, फिर 3 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी अलग चेक करो, एज वी डिड इन द बिगिनिंग इन माई लास्ट लेक्चर्स. लेकिन यहाँ तो ये फंक्शन इट इज सेम फॉर ऑल रियल नंबर्स. ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर ये सपोज करो x प्लस 1 है, यहाँ पर x प्लस 7 है. इट इज नथिंग लाइक दिस. तो अब हम कैसे करें फिर इसको? हम क्या करते हैं, विल कंसिडर एनी आर्बिट्ररी पॉइंट c. लेट
C belongs to R, B any arbitrary real number. वैसे जब मैंने C belongs to R लिख दिया उसका मतलब यही है कि दैट इज यानी रियल नंबर, तो आर्बिट्ररी कोई भी रियल नंबर है। तो f ऑफ c क्या होगा? सबसे पहले तो f ऑफ c sin c प्लस cos c। ओके, अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट में आ जाइए। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि आपको c के लेफ्ट में देखना है। x इज c माइनस फंक्शन, यू आर टू चेक द फंक्शन टू द लेफ्ट ऑफ दिस c इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो sin c, अब जहां भी x है उसको छोड़ दीजिए आप, बाकी पूरा फंक्शन लिखिए, और जहां x है उसकी जगह क्या लिखेंगे? c माइनस h, c माइनस h, c माइनस h। अब क्या करें फिर आगे? अब हम h की वैल्यू पुट कर दें क्या? ठीक, h की वैल्यू पुट करने से पहले आप या तो ऐसे कर दीजिए, h की वैल्यू पुट कर दो, sin c प्लस cos c आ जाएगा। या फिर आपको एक और तरीका, sin a माइनस b क्या होता है? क्या होता है जी sin a माइनस b? sin a cos b माइनस cos a sin b प्लस, इसमें भी ऐसे ही कीजिए, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। अब आप h की वैल्यू पुट कीजिए। जब आप h की वैल्यू पुट करेंगे तो sin h ये भी 0 हो गया और यहाँ पर भी sin h 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 sin 0 इज 0, तो आप यहाँ पर आपके पास बचा sin c cos 0 माइनस cos c sin 0 प्लस cos c cos 0 प्लस sin c sin 0। Wherever there is sin 0, name it, put it, that will be equal to 0। cos 0 क्या होता है? 1, तो sin c into 1 माइनस cos c into 0 प्लस cos c cos 0 is 1 and this sin c into sin 0 is 0। तो आपके पास ये भी 0 हो गया, ये भी 0, तो बचा क्या है? दिस इज sin c प्लस cos c। ये देखिए ac के इक्वल आया है, sin c प्लस cos c। सिमिलरली आपने राइट हैंड लिमिट के लिए भी करना है, बिल्कुल वैसे ही राइट हैंड लिमिट के लिए करना है। तो वहां यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला उसी के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाना, वो भी बिल्कुल सेम आएगा। तो इस तरीके से ऑल दीज थ्री विल बी सेम, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fc आएगा। देयरफॉर वी कैन से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट c, एंड c क्या था? आर्बिट्ररी रियल नंबर, इट मींस इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन नंबर 23 we are to find all the points of discontinuity। देखिए पहले अगर हम इसको विजुअलाइज करते हैं नंबर लाइन पर, तो 0 क्रिटिकल पॉइंट है इसका, एंड टू द लेफ्ट ऑफ 0 द फंक्शन इज sin x अपॉन x, एंड एट इक्वल टू 0 पर x प्लस 1 है, एंड टू द राइट ऑफ 0 दैट इज x प्लस 1। देखिए अगर हमें डिसकॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए बोला, पॉइंट्स निकालने उसके, तो मेनली आपका क्रिटिकल पॉइंट पर ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, तो हम सिर्फ इसी पॉइंट पर इसकी चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी। तो f ऑफ 0 क्या हुआ यहाँ पर? f ऑफ 0 0 प्लस 1, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन है, 0 प्लस 1 दैट इज 1। अभी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रही हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 का लेफ्ट यानी कि टू दिस साइड माइनस h होगा फंक्शन, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 के लेफ्ट में फंक्शन जो है वहाँ पर लिखिए sin 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। sin 0 माइनस h, आपको पता है sin ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये sin ऑफ माइनस h हो गया। sin ऑफ माइनस h का मतलब क्या है? sin ऑफ माइनस h, ये बना sin ऑफ माइनस h, तो इस तरीके से माइनस आपका बाहर आ जाएगा, माइनस sin h upon this minus h, it is cancelled. As you have already studied in your 11th class, this property limit x tends to 0 sin x upon x is 1, limit x tends to 0 tan x upon x is also 1, limit x tends to 0 ex minus tan inverse x के लिए भी है ये, sin inverse के लिए, tan inverse के लिए, that is 1, limit x tends to 0 log of x plus 1
upon x, that is also 1. This you have already studied in your 11th class. So we'll make the use of this identity here. What is this h? Whatever is the angle, the same is here, and the angle is tending to 0. This property is being used. This so this means this is 1. चलो ये दोनों 1 हो गए. अब आ जाइए राइट हैंड लिमिट पर. लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, यानी 1 के राइट में जाना है तो प्लस h करना है हमें. तो लिमिट h टेंड्स टू 0. क्या जो भी फंक्शन है वहाँ x का स्पेस छोड़ के बाकी लिखिए और x की जगह 1 प्लस एच लिखिए. 1 प्लस एच. अब h की वैल्यू पुट कीजिए आप यहाँ पर. सॉरी 1 नहीं था, सॉरी 0 के राइट में था, ये 0 था. 0 प्लस एच, 0 प्लस एच. अब h की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये भी 1 आया. तो हमने क्या देखा कि देखो मैंने बोला था कि बाकी जगह तो ये कॉन्टिन्यूस है ही, सिर्फ कहाँ पर हमने इसको चेक करना था 0 पर. अगर आपको वो भी करके दिखाना है, अभी तो पहले इसी को लिखिए कि therefore फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0. therefore फंक्शन इज continuous at x is equal to 0. therefore there is no point of discontinuity. और आप इसमें इंटरवल्स में अपने आप दिखा दीजिए. पहला एक ये इंटरवल, इस इंटरवल में ये फंक्शन है आपका, दिस इज कॉन्टिन्यूस, साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एक्स इज कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर कोशेंट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस. एंड दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन, दिस इज आल्सो कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल. तो ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस और 0 पर भी कॉन्टिन्यूस. देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स. इट मींस देयर इज no point of discontinuity in this question. And the students, in question number 24 you are to check the continuity of this function at x is equal to 0. हम चेक कर रहे हैं इसका. चलो क्रिटिकल पॉइंट 0 पर क्या है 0, और जब 0 नहीं है तो यह x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स एंड x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स. तो इधर तो चेक करने की इंटरवल्स में देयर इज नो नीड. We will check the continuity at the critical point only. ठीक है. तो f of 0 क्या है? f of 0 is already given, that is 0. अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट पर आ जाइए. लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. फंक्शन के लेफ्ट में जो भी फंक्शन है आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, x की जगह 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच. ओके. तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच का स्क्वायर h हो गया, साइन ऑफ माइनस 1 बाई एच आ गया. एंड वी नो दिस इज h स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस बाहर आ गया साइन 1 बाई एच. अच्छा आपको पता है h 0 है, इसके देखो पूरे अपॉन में तो 1 है, इंडिटरमिनेट फॉर्म इज नॉट हियर. इफ यू पुट h 0 तो आंसर 0 आ जाता है. 0 आ गया. लेकिन अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिखते हैं, और अगर इफ यू विल राइट इन दैट वे देन यू विल गेट 0 मार्क्स. आएगा तो आंसर उससे भी 0, लेकिन वो आपके स्टेप्स रॉन्ग होंगे और आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके लिए. वो लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस एच स्क्वायर को h इंटू एच लिखा, फिर साइन 1 बाई एच कर लेते हैं. फिर क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच. देखो अगर मेरे पास 3 है तो मैं इसको 1 अपॉन 1 बाई 3 भी लिख सकती हूँ, इवन दैट इट इज 3. अगर 7 है तो उसको 1 अपॉन 1 बाई 7. तो ऐसे एक h को ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन 1 बाई एच. 1 h will remain as they keep as it is, and to the other h they rearrange in this way, and this is sin 1 by h. Then they do like this कि भाई this is minus h, this is sin 1 by h अपॉन 1 by h. तो वो बोलते हैं कि ये हो गया जी 0 और ये है 1 और ये हो गया 0. ये गलत है. अब ये क्यों गलत है? वी आर गेटिंग द सेम आंसर. हमने आइडेंटिटी भी सही लगाई है. कैसे सही लगाई है आपने आइडेंटिटी? अभी मैंने जो आपके साथ आइडेंटिटी डिस्कस की थी, जो फॉर्मूला डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था लिमिट x टेंड्स टू 0. ध्यान से देखिए, साइन x अपॉन x equal to 1 when this x angle both which are same here and that angle must be equal, that must be approaching to 0.
अब आपके पास क्या है, जरा ध्यान से देखिए, लिमिट तो है h टेंडिंग टू 0, ओके, और यहाँ है साइन 1/h और ये भी 1/h है। अब आप एक बात बताइए, 1/h यानी कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड है। हमने तो तब बोला था जब ये 0 और 0 हो तब ये आइडेंटिटी लगेगी। जब ये h अगर 0 है, 1/h थोड़ी 0 है, 1/h तो इन्फिनिटी है ना आपकी, तो ये तो साइन इन्फिनिटी है। साइन इन्फिनिटी का मतलब -1 to 1 के बीच में कहीं कोई वैल्यू है और यहाँ पर इन्फिनिटी है। ये तो सेम नहीं हुआ ना, इसके 1 तो नहीं आया ये, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका गलत हो जाएगा, इसको आपने ऐसे नहीं करना है, आपने, ठीक है, आपने इसको पुट करना है 0, दिस इज 0 माइनस and this is h means 0 square into any number between any number belonging to -1 to 1। ये क्योंकि साइन जो है वो -1 से 1 के बीच में रहता है अपॉन 1, एंड 0 को एनी, ये डेफिनेट नंबर है, ये डिफाइंड है, ये -1 to 1 वो इन अनडिफाइंड आ रहा था आपका, तो दिस इज 0 स्क्वायर इंटू डिफाइंड नंबर इज 0, ओके। अब राइट हैंड लिमिट आप इसी तरीके से यू आर टू ट्राई इट योरसेल्फ। Yes students, this is the last question of today's class. In this question you are to find out the values of a and b if the function is defined in this manner for x less than equal to 2। हम यहाँ पर इसको नंबर लाइन पर शो कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू 2 पर 5 है, इक्वल टू 2 पर भी 5 है, ओके, एंड 2 और 10 के बीच में ax प्लस b है, और राइट साइड में ये 21 है, और 10 के और 10 के ऊपर भी ये 21 ही है, ठीक है। तो अब देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स यू कैन सी। तो पहले हम 2 पर लेते हैं, तो f of 2 क्या आता है, f of 2 इज गिवन 5। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्टली गिवन है इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट में कोई x नहीं है तो वी कैन राइट इट डायरेक्टली, दैट इज 5। अब राइट हैंड लिमिट क्या है इसकी, राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 का राइट, तो प्लस h करना पड़ेगा, दिस इज 2 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a, x की स्पेस छोड़ के आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 प्लस h, 2 प्लस h, पुट द वैल्यू ऑफ h दैट इज 0, तो दिस इज 2a प्लस b। नाउ इट इज ऑलरेडी गिवन टू दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये गिवन है हमें, सिंस फंक्शन इज गिवन कॉन्टिन्यूस, therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 2। left hand limit क्या था 5, right hand limit क्या था 2a plus b and this is 5। तो एक तरीके से हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, 2a plus b is equal to 5, this is your number 1। अब ये तो अभी हमारा क्रिटिकल पॉइंट 2 पर हो गया, एक रिलेशन वी हैव ऑब्टेन्ड इन बिटवीन a and b। now we'll check the now we'll do the same for this point x is equal to 10। तो at 10 function is 21 and right hand limit is already given to you, what is that, again 21। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 10 के लेफ्ट में, so this is 10 minus fx is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में जहाँ भी x है उसका स्पेस छोड़ दीजिए, प्लस b, और उसकी जगह क्या लिखेंगे 10 माइनस h। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए h की, 10a प्लस b। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, therefore f of 10 is equal to left hand limit is equal to right hand limit। f of 10 is 21, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 10a प्लस b, राइट हैंड लिमिट इज 21। तो हमारे पास यहाँ भी एक रिलेशन आ गया, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। दिस इज नंबर 2। अब 1 and 2 आर द 2 इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल्स a and b। वी कैन सॉल्व इट बाय एनी मेथड। तो आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ a and b। डू इट योरसेल्फ। वी विल डू मोर क्वेश्चंस ऑफ continuity। Tomorrow will be the last lecture for continuity।